Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So as discussed in my first video that from today onwards I am going to start solving all the previous year questions related to the computer science UGC net. So this is my second question on the same topic, that is DBMS, on the topic normalization. So I will try to explain the basic concepts also behind this question. So the question is, for a relation R where 8 attributes are given with a function dependency set is given with few function dependency such that f plus is exactly the set of fd that hold on R. So consider the fd's given in the above question. So the relation R is in which normal form? This is also a previous year question from GATE. So here we have to find out which normal form is there. So we know that basically there are 5 normal forms. First is the 1 normal form, 2 normal form, 3 normal form, BCNF, 4th normal form and 5th normal form. Major classification is on the basis of this, but according to the industry only we follow up to BCNF. Okay, so according to the industry standards, if a relation is in BCNF, that means it is enough. Okay, so here what are the function dependency given? The function dependency given is CG is deriving G, A is deriving BC, B is deriving CHF, E is deriving A, and F is deriving EG. Okay, so to find out which normal form is there following the relation R, we have to first find its candidate key. So in the previous question, in the previous video, I have discussed how to find the candidate key. So from that, I am writing the candidate key which we have find out is we just check on the right hand side of the function dependency which attribute is missing. So you can see here D attribute is missing. So we will take the closure from A, B, C and D and so on, and from that we include D because from in किसी भी फंक्शन डिपेंडेंसी के थ्रू डी डिराइव नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हमारी जो कैंडिडेट की होगी दैट इज़ ए डी, देन बी डी, then ED and FD. So these are the candidate key. To refer how to find out candidate key, please search the first video of this particular playlist. Then you will get to know how to find out the candidate key. Okay. Now the second thing is, after finding candidate key, we have to bifurcate all the candidates attributes into two categories. First is the prime attribute and the second one is the non-prime attribute. So what is prime attribute? Prime attribute means those attributes which take part in candidate key. So you can see here prime attribute, the attributes which take part in candidate key is A, D, B, E and F, right? And whatever left attributes out of all the attributes, if we subtract prime attribute, then the attributes are known as नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. यानी सारे एट्रीब्यूट्स में से प्राइम एट्रीब्यूट हटा देंगे तो बचेगा कौन सा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो हम यहाँ से अब लिख देंगे कि हमारे पास में कौन कौन से एट्रीब्यूट नहीं डिराइव हो रहे. सी नहीं हो पा रहा, एच नहीं हो पा रहा और जी नहीं हो पा रहा. टोटल 8 एट्रीब्यूट से 5 हेयर है और यहाँ पे 3 है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे सी एच जी है. अगर हम बात करें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, ओके, अगर हम बात करें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, सॉरी अगर हम बात करें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर रिलेशनल अलजेब्रा में, रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल मॉडल कह सकते हैं, रिलेशनल मॉडल के अंदर हर रिलेशन जो होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 1NF में होता है. 1NF का मतलब है ईच एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक. और ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन है कि सारे एट्रीब्यूट क्या है? एटॉमिक है. तो हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम वन बाय वन हायर नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव ऑन करेंगे, राइट. देन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है
we have to check about the partial dependency. Partial dependency. तो पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे चेक करेंगे? पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन ये होती है कि इफ एनी सबसेट ऑफ कैंडिडेट की इज डिराइविंग any subset of candidate key is deriving any non-prime attribute, then it is violation of 2NF. यानी हमें 2NF होने की तो बहुत सारी कंडीशंस है, तो हम बहुत सारी कंडीशन नहीं चेक करेंगे, हम वो कंडीशन चेक करेंगे जो 2NF को वॉयलेट करती है. और वो वॉयलेशन की कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी कैंडिडेट की का सबसेट, नोटिस कर रहे हैं आप, ये सारी क्या है, कैंडिडेट की, AD कैंडिडेट की, BD कैंडिडेट की, ED कैंडिडेट की एंड FD. ये इंडिविजुअल कोई भी एट्रीब्यूट्स को डिराइव नहीं कर सकती, बट कॉम्बिनेशन में डिराइव कर सकती है. बट अगर इसका किसी का भी सबसेट कैंडिडेट की का अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वॉयलेशन है 2NF का. वॉयलेशन है 2NF का मतलब वो 2NF में नहीं है. ठीक है, अभी हम यहाँ अब वन बाय वन सारी फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक करेंगे. सबसे फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी है CH. अब आप देखेंगे CH ये दोनों क्या है, नॉन प्राइम है, और G है वो भी क्या है, नॉन प्राइम. यानी ये तो 3NF का वॉयलेशन है. 3NF की कंडीशन ये होती है फंक्शन डिपेंडेंसी नॉन प्राइम जो है दैट कैन नॉट डिराइव नॉन प्राइम. दिस इज द कंडीशन टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर रिलेशन इज इन 3NF और नॉट. ये तो हमें चेक करना है ना, ये हमें चेक करना है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो वो 3NF में नहीं है. पर पहले हम 2NF का चेक करेंगे, बाद में हम 3NF का चेक करेंगे. बट यहाँ पे हमें पहली ही कंडीशन 3NF का वॉयलेशन दिख गई, इसका मतलब 3NF तो नहीं है ये. अब हमें क्या चेक करना है, 2NF चेक करना है. तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे A विच इज़ अ सबसेट ऑफ AD. यू कैन सी हेयर A इज अ सबसेट ऑफ AD, बट हेयर BC. अब यहाँ पे देखो B जो है दैट इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट, बट C इज़ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो हम इसका वॉयलेशन मानेंगे. क्या मानेंगे, वॉयलेशन मानेंगे 2NF का. अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ आप देखेंगे थर्ड फंक्शन डिपेंडेंसी में B इज डिराइविंग CHF. नाउ यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑल द एट्रीब्यूट्स आर नॉन प्राइम, राइट, एंड B is what, it is a subset of, this is a subset of BD. नाउ हम ये कह रहे हैं कि B और D मिलकर सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर रहा है, यानी BD क्या है, कैंडिडेट की है. बट यहाँ पे हमें इससे क्या पता चल रहा है कि B अकेला ही किसको डिराइव कर पा रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि वो खुद प्राइम एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है. पर अगर अकेला B ही सबको डिराइव कर पाता है तो फिर हम BD को प्राइम कैंडिडेट की कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. सो दिस इज द वॉयलेशन. दैट इज वाई वी कैन से दैट द रिलेशन आर इन विच द एट्रीब्यूट्स आर A, B, C, D, E, F, G, H is not in 2NF. अगर 2NF में नहीं है और बाय डिफॉल्ट 1NF में तो गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही इटसेल्फ गिवन है कि ऑल द एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक, दैट मीन्स इट इज बाय डिफॉल्ट इन 1NF. तो हम कहेंगे बट इन 1NF. अब हमारा अगर 2NF का वॉयलेशन हो गया तो हम 3NF, 4NF, BCNF का कंडीशन बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दैट अ रिलेशन विल बी इन 2NF, not in 2NF but in 1NF. Okay, so I hope you have got the solution. If you still have any suggestion, then please write the suggestion in the comment box and like and subscribe to my channel.